Okay student, welcome back to tutorial, and today's going to teach set theory. Topic is subset, universal set. Before going to complete chapter wise solution, we must know some important point and its definition. So first, subset. This is very important points. You go through in detail. So subset definition क्या है? If A and B are two sets then every element of every A present in B A subset of B. If A and B are two sets, then every element of A present in B, then A is subset of B. So it is denoted by this. Example, let A is equal to 1, 2, 3. So, and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, A is subset of B. यहाँ हम क्या देख रहे हैं? A का क्या एलिमेंट है? 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So every element of A present in B. A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे? A is the subset of B. और हम ऐसे भी कर सकते हैं, B is superset of A. B का A का हर एक एलिमेंट B में है, तो B क्या हुआ? B is a superset of A. B is superset of A. Clear? So this is subset. And some important point about subset. Regarding आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या क्या है? मेन पॉइंट्स. पहला ये है, every set is subset of itself. Clear? दूसरा हो गया, phi is the subset of every set. तीसरा हो गया, total number of subset of set A is equal to 2 to the power n, where n equal to number of elements. This is very important points to be remembered about subset. First point is very important. Every set is subset of itself. हर एक सेट अपने आप में एक सबसेट है. दूसरा, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई सभी सेट का सबसेट होता है. तीसरा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 2 to the power n, where n is the number of element present in set. तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर ये तीनों पॉइंट हम समझेंगे. ठीक है? A इक्वल टू, लेट A इक्वल टू 1, 2, 3.
ए क्या है, एक एलिमेंट, ए क्या है, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3। तो हम सेट को कैसे दिखाते हैं, 1 इज द, ब्रैकेट के अंदर ही दिखाना है, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 2 इज द सबसेट ऑफ ए एंड 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है तो हमने क्या कहा, 1 2 3, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3। तो इसके कितने सबसेट होगा, एक तो हो जाएगा 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2 1 3 1 3, फिर 2 3 1 2 3 and 5 is included, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8। सेट ए का कितना सबसेट हुआ, 8 हुआ। ए का 3 एलिमेंट के लिए कितना सबसेट, 8। तो हम फार्मूला क्या बताए थे, 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 3 है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, 3। 2 to the power 3 इक्वल टू कितना हुआ, 8। 8 सबसेट, 8 सबसेट आ रहा है यहाँ। 5 जो हमने दूसरा प्रॉपर्टी बोला था, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, आ गया 5। फिर 1 इज सबसेट ऑफ सेट ए, 2 इज सबसेट ऑफ सेट ए, 3 is subset of set A, 1 2 subset of set A, 1 3 subset of set A, 2 3 2 and 3 subset of set A, 1 2 3। ये हमने पहला पॉइंट जो बोला था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। माने क्या हुआ कि पूरा सेट अपने आप में क्या है, एक सबसेट है। तो ये आपको ये जो पहला पॉइंट था वो हुआ। और थर्ड जो फार्मूला हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज 2 to the power n, where n is the number of element present in the set। वो हो गया 3, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। क्लियर हो गया, टोटल 8 सबसेट हुआ। यानी सेट ए में 3 एलिमेंट है, उसके कितने सबसेट होंगे, 8। 8 होंगे और 8 ये रहा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट कम टू come to universal set। If there is some set under consideration, there happens to a set which is super set of the given set, such sets are such set is known as universal set of the given sets। If there is a some sets under consideration, there happens to be a set which is superset of the given set, such set is known as universal set। It is denoted by universal। This is यूनिवर्सल सेट। देयर आर सम सेट, कुछ सेट दिया हुआ है और उस सेट का एक ऐसा सेट होगा जिसका सारा जितने भी गिवन सेट होंगे उसके सारे एलिमेंट उसमें होगा, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और कह सकते वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। जितने भी सेट है उसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। एग्जाम्पल
Let us consider A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3, 4, 5, and C equal to 4, 5, 6, 7, and so this is the three sets are here. Universal set क्या हो जाएगा? यहाँ 3 सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ जितने भी सेट है, ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, बी का हर एक एलिमेंट इसमें है, सी का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। तो क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल दिस थ्री सेट्स। इसके अलावे भी होगा, उसका भी सारा एलिमेंट इसमें ही होगा। ठीक है, सो इसीलिए यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। जितने भी सेट दिए होंगे उनके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ओके, कम टू पावर सेट। ऑलरेडी हमने सबसेट पढ़ा दिया था। दैट इज बेस्ड ऑन द सेम सबसेट। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ए सबसेट is called power set of A. It is denoted by power set P A. Clear? It is collection of all set of subset. Collection of all set of subset is called power set of A. It is denoted by PA. So example, let A is equal to 1, 2, 3. So फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम? इसका सबसेट निकालेंगे। सबसेट कैसे निकलेगा? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए? 8 हो गया। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ सबसेट। दिस इज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। कितना हुआ? 8। तो ए टोटल नंबर क्या होगा? पावर सेट में अगर हम लिखेंगे इसे पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये सारे मेंबर्स, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज सेट एंड दिस इज द सबसेट एंड कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। क्लियर? तो वही है, जितना पावर सेट होगा उसको क्या करना है? सारे एलिमेंट्स को, सारे सेट्स को उस ब्रैकेट के अंदर रख देने से वो पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या है? इसमें पावर सेट, इसका जो हमने नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा? नंबर ऑफ पी ए, नंबर ऑफ पी ए इक्वल टू क्या होगा? 2 to the power n, where n is equal to number of elements, number of subset, number of elements। क्लियर? एलिमेंट होगा, अगर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो गया? 8। 2 to the power 3, 3 एलिमेंट है तो कितना हो गया? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट हो गया और उसे करली ब्रैकेट के अंदर रख देने से क्या होगा? पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर? पावर सेट ओवर। इस तरह से हम अब आते हैं इंटरवल पर। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल।
इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, इंटरवल में हमें क्या पढ़ना है? इंटरवल दो तरह का होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है? लेट ओपन इंटरवल हम पहले बताते हैं। एक हो गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और दूसरा क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, तो ओपन में क्या होगा? ओपन इंटरवल, let a be element of R and a is less than b, then the set of all real numbers between a and b is called open interval. Open interval. It is denoted by or represented by, denoted by a b, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं. Let a and b are the real number and a is less than b. Then the set of all real number, set of all real number between a and b, a और b के बीच जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा. ओपन इंटरवल में क्या होगा? इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम यहाँ बताते हैं. सिंबॉलिक फॉर्मेट, सिंबॉलिकली ए बी इक्वल टू क्या होगा? x such that x is element of R and a is less than x and x is less than b. इसका मतलब ये हुआ a and b does not contain its end point. It does not contain its end point. Clear? इसका क्या होता है? End नहीं होता है. It does not contain end point. End point क्या हुआ? जैसे A और B है. अब एक लाइन पर हम दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या दिखाते हैं? A और B को. A और B को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ A और B हो गया. A and this is B. This two exactly does not lie as the straight line. क्या होगा कि A से कम x का क्या होगा वैल्यू? A और B का बीच का वैल्यू आएगा. एग्जैक्टली A इस पॉइंट पर नहीं आएगा और B एग्जैक्टली इस लाइन पर नहीं आएगा. ठीक है. अगर मान लें कि 3 और 5 है, ओपन इंटरवल है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? एग्जाम्पल 3 and 5. 3 and 5. 3 एग्जैक्टली इस लाइन पर नहीं आएगा और 5 एग्जैक्टली इस लाइन पर नहीं आएगा. 5 से थोड़ा कम होगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है. 2.99 हो सकता है और यहाँ 4.99 हो सकता है, लेकिन 5 एग्जैक्टली इसका इंड पॉइंट नहीं होगा, 3 इसका इंड पॉइंट नहीं होगा. ठीक है. तो ये रहा हमारा ओपन इंटरवल. अब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं. क्लोज इंटरवल में क्या होता है? अभी हमने ओपन इंटरवल बताया. क्लोज इंटरवल क्या होता है? द इंटरवल विच कंटेन इंड्स पॉइंट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. इसका इंड पॉइंट होता है, यानी पॉइंट एग्जैक्टली लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है. द इंटरवल विच कंटेन क्लोज इंटरवल, इंटरवल which
contain its end point is called closed interval. It is denoted by this A and B. ठीक है, बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देता है, जैसे क्लोज इंटरवल। इसका एंड पॉइंट होता है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए बी इक्वल टू x such that x is a real number and a is less than equal to x and x is less than equal to b. ठीक है, ओके। सो दिस इज द क्लोज इंटरवल। तो इसका और एग्जाम्पल ले सकते, एग्जाम्पल 3 और 5। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो 3 और 5 ये दोनों 3 and 5 एग्जैक्टली लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? 3 और 5 कहाँ होगा? इसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, 3 और 5 का क्या होगा? इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या हुआ? 3 and 5। ठीक है, तो एग्जैक्टली लाइन पर ये आएगा। अब हम कुछ और भी सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल केस 1, ओपन एट वन एंड, ओपन एट वन एंड and closed at other end, closed at other end। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ? ओपन, ए हो गया ओपन और बी क्लोज्ड। ये क्या हो गया? ओपन। इसका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? इसका ये होगा कि ए जो होगा x such that x is a real number and a is less than x and x is less than equal to b। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। यहाँ ओपन है तो यहाँ लेस देंगे, क्योंकि a एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पर लाइज नहीं करेगा। और so is closed at one end and open at the other end। Example A B, A at closed end and B at open end। Now x such that x is element of R and A is less than equal to x, this is the closed end, and B के लिए क्या होगा? x is less than B। So this is the symbolic representation of one end is closed and other end is open। So now come to example, some representation of interval on a straight line। A representation of interval at a straight line। So case 1, A and B open end, both ends are open, A and B exactly does not lie at the straight line। A B closed interval, both A and B lies at a straight line, both A and B is the end point। Now come to second, A open end and B at closed end। A open हो गया and B closed, it's B at its end point and A does not lies at B, exactly does not lies at a straight line। So A and B exactly lies at the straight line, but A exactly does not lies at the straight line। Next, A closed and B open, A and B। So A exactly lies at the straight line, B exactly does not lies at the straight line। This is the
representation of interval at state line. Okay, now come to exercise. Okay, now come to exercise 1.3. We are going to solve this complete solution of exercise 1.3. Make correct statement by filling the symbol, subset or it is not subset in blank space. Number 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें देखना है 2 सेट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं. सबसेट हमने पहले बताया था कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. यहाँ ये है 2 सबसेट दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है. पहला दूसरा का सबसेट है कि नहीं, इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि पहला सेट का पूरा एलिमेंट दाएं साइड वाले सेट में होना चाहिए, दूसरी साइड वाले जो भी सेट है उसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. 2, 3, 4, 2, 3, 4, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो इट इज सबसेट. नाउ कम टू नेक्स्ट ए बी सी डी. इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस. क्लियर? इसका हर एक इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा. थर्ड में आ जाए, एक साइड दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. एंड नेक्स्ट सेट क्या है, एक साइड दैट एक्स अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. पहला सेट बता रहा है कि 11th क्लास का स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में जितने स्टूडेंट है वो होगा लेफ्ट साइड में. राइट में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो उस स्कूल में 9, 10, 11, 12 सारे होगा, तो इसका 11th का भी इस स्कूल में है प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, सबसेट. ओके. फोर्थ में क्या है, एक साइड दैट एक्स सर्किल इन ए प्लेन. नेक्स्ट क्या है, सर्किल इन ए प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. पहला क्या है, सर्किल इन ए प्लेन. सर्किल इन ए प्लेन मीन्स एनी रेडियस ऑफ द सर्किल. एक का रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन सेकेंड सेट जो दिया हुआ है, सर्किल इन प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट का रेडियस है, तो ये सबसेट नहीं होगा. ठीक है, अगर ये सेट इधर होता और ये सेट इस साइड होता तो ये सबसेट हो जाता. अगर अपोजिट वे में होता तो क्या हो जाता, सबसेट हो जाता. लेकिन यहाँ दिया हुआ सर्किल इन ए प्लेन मीन्स रेडियस ऑफ एनी यूनिट. इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट भी हो सकता है. लेकिन राइट साइड में जो दिया हुआ है ओनली 1 यूनिट का, तो क्या होगा, इसका सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा. क्लियर? ओके. कम टू फिफ्थ, एक साइड दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन. एक साइड दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो ये क्या है, ट्रायंगल है. ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है. लेकिन राइट साइड का जो सेट में दिया हुआ है वो रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो 4 साइडेड होता है और ये 3 साइडेड होता है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट 6, एक साइड दैट एक्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन. एक साइड दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन. इक्विलैटरल ट्रायंगल है लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रायंगल इन ए प्लेन. ट्रायंगल इन ए प्लेन मीन्स सारे ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, इसमें प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सबसेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एक साइड दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और राइट साइड क्या है, एक साइड दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड इंटीजर. तो क्या है, यहाँ इवन नेचुरल नंबर है और ये राइट साइड क्या है, इंटीजर है.
तो इवन नेचुरल नंबर हो या तो ऑड नेचुरल नंबर हो, इंटीजर में क्या होगा, सारा होगा। तो इवन है तो इवन क्या है, इंक्लूडेड इन इंटीजर, सो इट इज सबसेट। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, सेकेंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, सिर्फ ये पता करना है। 1, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ए बी का हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज प्रेजेंट इन दिस सेट, सो इट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। यहाँ क्या दिया हुआ है, नॉट सबसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड इज द सबसेट ऑफ एक्स एट दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में ए भी आता है, ए ई आई ओ यू, तो ए ई प्रेजेंट है इसमें, इसका मतलब ये सबसेट, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, सो इट इज ट्रू। इसका सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, ट्रू है। थर्ड, 1 2 3, इधर 1 3 5, इसमें 2 है, इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, 1 3 है 2 नहीं है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, इट इज नॉट सबसेट। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, सबसेट दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। क्लियर, सही है, इस सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है, इसलिए ट्रू। नेक्स्ट, फिर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। क्लियर है, ए एलिमेंट है ए बी सी का, ए बी सी में प्रेजेंट है ये, लेकिन जब एलिमेंट को दिखाना होता है तो ब्रासेस के अंदर नहीं होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम नहीं दिखा सकते इसे, ये सेट हो जाता है। सबसेट को अगर यहाँ सबसेट होता तो ये ट्रू होता, लेकिन इस केस में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 में क्या है, x such that x is even natural number less than 6 is subset of x such that x is a natural number which divide 36। पहला में क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, 6 का 2 और 4 होगा। और सेकेंड में क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने वाला क्या होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ठीक है, 36 होगा। तो ये है। अब ये 2 4 क्या है, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, ये सबसेट होगा, यहाँ क्या होगा, सबसेट होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो इट इज सबसेट ऑफ गिवन सेट। ओके ओके, come to 3, let A equal to 1 2 3 4 5, which of the following statement are incorrect and why। ठीक है, इसमें से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चन इन एग्जाम्स, सो प्लीज पे अटेंशन, आप उसको ध्यान से देखें, ये बहुत कंसेप्चुअल है। यहाँ हमें ये देखना है कि 1 2 3 4 5, यहाँ 3 4 जो एक सेट के अंदर लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, हमें इसका इसी तरह से ट्रीट करना है जैसे 1 2 और 5 के साथ करना है। जैसे हम 1 है, 2 है, 5 है, सेम वे ये पूरा 3 4 एक ब्रैकेट के अंदर है, वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम पहला पर आते हैं, 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब 3 4 सबसेट ए का है, 3 4 है, लेकिन क्या है कि ए, जैसे अगर हमको 5 को दिखाना होता कि 5 सबसेट ए का है, तो 5 को ब्रैकेट के अंदर में रखकर क्या दिखाते हैं, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 4 एक सेट को दिखा रहा, अगर हम 5 को दिखाएं कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये गलत होगा, क्योंकि जब भी सबसेट दिखाना होता है तो एलिमेंट
ब्रैकेट के अंदर रहता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है। यहाँ पर क्या है, ये सबसेट नहीं होगा, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये 5 है तो ये सबसेट होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसेट होने के लिए एक ब्रैकेट और लगाना था, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स, इट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। जैसे अगर हमें 5 को दिखाना होगा तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए दिखाते हैं, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह से 3 4 को भी एक एलिमेंट में हम दिखा सकते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, ठीक है, 3 4 डबल ब्रैकेट है, इज द सबसेट ऑफ ए। 3 4 क्या एक एलिमेंट है, अगर हमको सबसेट में दिखाना होगा तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगा दिया है, इसलिए ये सबसेट, ये क्या है, ट्रू है, सही है। कम टू 4, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, सही है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं, तो 1 इज एलिमेंट, ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट 5, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, क्योंकि जब सबसेट में हमें दिखाना होता है तो ये एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, 1 to 5 ब्रैकेट लगा है, सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट 1 to 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 to 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट को नहीं दिखाया जाता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 to 3 द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही नहीं, सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है यहाँ एक एलिमेंट है, 3 और 4 जब भी आएगा तो साथ आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता, ये दोनों मिला के पूरा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो बीच से ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, नहीं, 5 तो अपने आप में एक सेट है, जिसको एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट हमने पढ़ाया। ये सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। तो ये 5 क्या है, अपने आप में एक सेट है, तो एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल राइट। एवरी से नल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, 5 क्या होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। क्लियर है। और यहाँ क्या है, 5 अंडर ब्रेसेस इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं। ओके, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो हमें सेट दिया है, सबका सबसेट निकालना है। ठीक है, हमने सबसेट के प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसी के कंसेप्ट पर हमें निकालना है। 1 एक ही एलिमेंट है ए में, तो क्या होगा, इसका सबसेट 5 हो जाएगा, और क्या होगा, एक का सबसेट 5 एंड ए। 5 क्या होगा, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है तो अपने आप में सबसेट होता है। ये हो गया सेकेंड का, ए बी है, इसका सबसेट क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड बी एंड ए बी। क्लियर, 5 ए हुआ, बी होगा और ए बी होगा, 4 होगा। ठीक है, थर्ड होगा, थर्ड का सबसेट कितना होगा, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, these are the subset of this set। 5 1 हुआ, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, पूरा सेट। Every set is subset of itself and 5 is subset of every set। Now come to fourth। fourth का सबसेट क्या होगा, फोर्थ का सबसेट
फाइव ही होगा, फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सेट ऑफ एवरी सेट, फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? तो वो अपने आप में वो एक सबसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट okay, come to fifth. How many elements has power set A if A is equal to 5? A equal to क्या है? 5 है। तो 5 क्या है? अपने आप में एक सबसेट है। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? P क्या होगा? इसको जस्ट हमें ब्रैकेट के अंदर रख देना है, क्योंकि पावर सेट क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो A का कितना है? एक सबसेट है, तो यही सबसेट क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जो पावर सेट का एलिमेंट होगा। नाउ कम टू सिक्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हमें इंटरवल में लिखना है, वेदर इट इज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, और क्लोज और ओपन और क्लोज। इस फॉर्मेट में हमें लिखना है एज पर क्वेश्चन। तो पहला क्या है? x such that x is element of R and -4 is less than x, x is less than equal to 6। क्लियर है? -4 is less than x मीन्स ये क्या है? ओपन इंटरवल है 4, और a क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 6। जहाँ लेस देन इक्वल टू 6 आएगा मतलब वो क्लोज इंटरवल होगा। दैट पॉइंट लाइज एट द स्ट्रेट लाइन, exactly lies at the straight line. It contains end point, but this does not contains end point। 6, तो ये होगा closed। Now next, x such that x is an element R and -12 is less than x and x is less than -10। यहाँ पर क्या है? -12 is less than x, x is less than 10, दोनों क्या है? ओपन इंटरवल है। -12 और क्या हो जाएगा? -10, बस ओपन इंटरवल लिख दिया, ये हो गया। नेक्स्ट, x such that x एलिमेंट ऑफ R, 0 is less than equal to x and x is less than 7। यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू x है, तो 0 हो जाएगा क्लोज इंटरवल, 0 क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल, एंड 7 क्या होगा? दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। लेस देन है खाली, तो क्या होगा? ओपन। लेस देन इक्वल है क्लोज्ड। 0 क्लोज इंटरवल, 7 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स द एलिमेंट ऑफ आर। कंडीशन क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल 4। तो हाँ, दोनों क्या है? लेस देन इक्वल 3 and 4 both are closed interval. Both 3 and 4 lies on the straight line and both lies at its end. उसका okay. Come to question number 7. Write the following interval in the set builder form. अब set builder form के रूप में हमें लिखना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखते हैं? 3 and 0, ये हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है, और वो क्या है? स्मॉल ब्रैकेट से बंद है। ये क्या है? ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हमें लिखना है, तो क्या लिखते हैं? x such that x is a real number and -3 is less than x and x is less than 0। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, -3 लेस देन x लेस देन 0। नेक्स्ट, दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट से बंद है। 6 और 12, तो इसे क्या लिखेंगे? x such that x is एलिमेंट ऑफ R, और कंडीशन क्या होगा? 6 is less than equal to x and less than equal to 12। ठीक है, दोनों क्लोज है, दोनों का एंड पॉइंट है, तो लेस देन इक्वल होगा। थर्ड में क्या होगा? 6 and 12, यहाँ ओपन इंटरवल है, 12 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? x such that x is एलिमेंट ऑफ R और 6 is less than x, x is less than equal 12। ठीक है, इसका एंड पॉइंट है
इसका एंड पॉइंट नहीं है। थर्ड, फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं, -23 क्लोज इंटरवल है और 5 इज ओपन इंटरवल। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स द एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर है और क्या है -23 लेस देन इक्वल होगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट है 0, तो एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5, इसका एंड पॉइंट नहीं है इसलिए लेस होगा। और ये -23 क्या होगा, क्लोज इंटरवल है इसलिए इसका एंड पॉइंट होगा और लेस देन इक्वल एक्स होगा। जैसे में इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें एक ऐसा यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों ट्रायंगल आ जाए। तो ऐसा क्या होगा, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। जो भी सेट्स दिया हुआ हो उसका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सेट ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा। सो इट इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को इससे डिनोट करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6 and C इक्वल टू 0 2 4 6 8. Each of the following may be considered as universal set for all the 3 set A, B, C. हमें क्या दिया हुआ है, 3 सेट दिया हुआ है, सेट A, सेट B, सेट C। तीनों का एलिमेंट दिया हुआ है। सेट A में दिया हुआ है B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 2 4 6 8। तो इसके लिए 3 ऑप्शन, हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें इन तीनों सेट ए बी सी तीनों का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल हम देखते हैं कौन सा होता है। नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये है। अब ये देखते हैं कि तीनों का ए बी सी का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। 1 3 5 पहला का है, ए का है, बी का 2 4 6 वो भी है, सी का 0 2 4 6 है, यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 5, आई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। थर्ड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने क्या देखा, 1 3 5 ये भी है, 1 3 5। बी में क्या, 2 4 6 2 4 6। सी का 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड में क्या हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों सेट का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये थर्ड क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। तो ये थर्ड जो है, तीनों सेट के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होगा, सुपर सेट फॉर द गिवन सेट। ओके।